Dear learners, how are you? Welcome to Unacademy. Freedom to learn, freedom to succeed. You all know Unacademy is one of the best platforms for UPSC preparation. So, UPSC subscription offer for Independence Day is 24999 and the offer ends today. So, please subscribe and make your preparation amazing. And also, guys, batch for 2025 Freedom UPSC IAS IPS language is English. So it has all the features that are given to you, complete prelims and mains preparation, CSAT preparation included. Yes, I am going to take an English medium batch also for CSAT, guys, right? Prelims and mains test series with evaluation. Don't miss, please enroll. You can use my code, that is Bhargavarish. So I'm just writing it for you. Code is Bhargava Rish. All right. So also UPSC IAS batch for 2025. These are the batches. First is Liberty batch. This is complete English medium batch. You know the faces, one of the best English medium team for UPSC preparation. Also, we have started on 15th of August. It is a Freedom batch. It is English medium batch, and starting today, Shikhar, complete Hindi medium batch. So please don't miss the opportunity. Also, UPSC Iconic subscription has become far better. These are the existing features, but these are the new features. Offline recorded courses directly from old Nagar, right? This is the team, module, answer evaluation, interview questions, and other, these are the features you are all already aware of. And August optional carnival. All optional teachers are one of the best teachers in India. Please do not miss this opportunity, guys. And then, I would also like to tell you about myself. I am Rishi Bhargava. I've been teaching CSAT for years and years together. Amazing results, and you can use my code, that is Bhargavarish, to get the enrollment done. Today we are going to talk about permutations and combinations. We have to decode it. So let's start the session. Stop. मेरा नाम ऋषि भार्गवा है और मैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आपको सी सैट की तैयारी कराऊंगा. सो आई हैव गॉट गुड एक्सपीरियंस एंड डेफिनेटली ग्रेट रिजल्ट्स ऑल्सो. एंड सी सैट इज़ टफ और बहुत सारे बच्चों की एक बहुत यूनिक डिमांड है, सर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस नहीं आती है. एंड दिस इज समथिंग, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने 10th के बाद मैथ्स नहीं पढ़ा, तो उनको लगता है कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत टफ है और ये एडवांटेज है जिन बच्चों ने 11th और 12th में मैथ्स पढ़ा है. डेफिनेटली थोड़ी बहुत एडवांटेज तो है, बट फ्रैंकली जिस तरह के क्वेश्चन पुट ऑन किए जाते हैं वो विदाउट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी सॉल्व हो जाते हैं. एंड थोड़ी बहुत अगर आप नॉलेज गेन कर लेते हो तो वो बहुत ईजिली सॉल्वेबल हैं. सो ये मानना कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन टफ है और उसको छोड़ दिया जाए, इट इज़ रियली रियली रॉन्ग. आज मैं तुम्हें परमुटेशन और कॉम्बिनेशंस के प्रॉपर बेसिक्स करवाने वाला हूँ. उससे तुम्हें एक चीज़ तो समझ आ जाएगी कि वेयर टू अप्लाई एडिशन, वेयर टू अप्लाई मल्टीप्लिकेशन. क्वेश्चंस कैन बी डन विदाउट यूजिंग परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, उसके बारे में भी बात करेंगे. और परम्यूटेशन कहाँ लगानी है, कॉम्बिनेशन कहाँ लगानी है, उसके बारे में भी बात करेंगे. सो टुडेज क्लास इज गोइंग टू बी रियली रियली एक्साइटिंग एंड आई इनवाइट यू ऑल टू प्लीज see this class and one more class after this, so that you have the basic knowledge of permutations and combinations, right? So let's start with permutations and combinations. uh, So permutation combinations is one topic which would actually help you in other exams also, like SSC, Bank PO. उसमें भी a lot of questions are asked from this topic, है ना. तो problems क्या हैं? What are the exact problems in permutations and combinations?
दैट अ स्टूडेंट फेसेस। मैं इस बारे में प्रॉपर डिस्कशन करना चाहता हूँ। मुझे लगता है पहला इशू जो आप पढ़ते हैं, वेयर टू अप्लाई मल्टीप्लिकेशन and where to apply addition। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता। जब मैं एक स्टूडेंट था तो मुझे भी ये प्रॉब्लम आती थी कि मल्टीप्लिकेशन क्यों यूज हो रही है और एडिशन क्यों यूज हो रही है। आप सब एग्री करेंगे इसके लिए, एग्रीड? अगर आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ी है या पढ़ रहे हो, पढ़ना चाहते हो, तो ये सबसे बड़ा इशू स्टूडेंट्स फेस करते हैं। सेकंड इशू जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं वो है वेयर टू अप्लाई परम्यूटेशन, so which is symbol P, and where to apply combination which is symbol C। कहाँ परम्यूटेशन यूज करना है, कहाँ कॉम्बिनेशन यूज करना है, ये भी एक ऐसा प्रॉब्लम है जो बच्चे काफ़ी फेस करते हैं। when we actually eradicate these problems, you know what is the utility? यूटिलिटी ये है कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एज अ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगर आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस आती हैं तो आप प्रोबेबिलिटी को भी बहुत इजीली कर सकते हो, राइट? थर्ड बहुत बड़ा इशू क्या है, बच्चों को प्रोबेबिलिटी समझ नहीं आती है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी का बेसिक है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये इसका बेसिक है। सेकेंडली प्रोबेबिलिटी का बेसिक है सेट थ्योरी एंड वेन डायग्राम। सेट थ्योरी एंड वेन डायग्राम की आप वीडियोस एक बार देख लीजिएगा। आई डोंट थिंक उन वीडियोस को देखने के बाद आपको कभी भी सेट थ्योरी और वेन डायग्राम्स में कोई प्रॉब्लम आएगी। अब रही बात प्रोबेबिलिटी एज अ टॉपिक इज डिपेंडेंट अपॉन योर स्किल्स ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो इसके फ़ायदे बहुत हैं। इफ़ यू आर गुड एट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, आई कैन ईजिली टेल यू आपकी आधी से ज़्यादा इश्यूज जो है ना वो सॉल्व हो जाते हैं। तो हम इस प्रॉब्लम को आज इरेडिकेट करने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी, पहला फंडा क्या है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का? सबसे पहला फंडा है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देखिए, अगर दो जॉब्स हैं, आई एम सॉरी, there are two jobs, job 1 and job 2. Job 1 can be done in m ways and job 2 can be done in n ways. Alright, so दो काम हैं, एक काम को करने के m तरीके हैं, दूसरे काम को करने के n तरीके हैं। then number of ways of performing them, then in succession is m into n ways, right? Now sir, what is the meaning of in succession, right? देखिए, एक काम के होने के बाद दूसरा काम होता है। work 2 is dependent upon work 1, isn't it? work 1 happens, then work 2 happens, all right? So they are dependent upon each other, and the key word for principle of multiplication is and. So wherever in a question you get a sense of and, you have to apply fundamental principle of multiplication. I would do a lot of questions. देखिए, आप ये जानते भी होंगे, आपने थ्योरी में पढ़ा भी होगा, बट सर कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो बात करेंगे। आई होप दिस इज वन थिंग दैट वुड बी मोर क्लियर विद एन एग्जाम्पल। पर मैं एग्जाम्पल देने से पहले आई वुड लव टू डू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एज वेल। सो प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, again I have two jobs, job 1 and job 2. Job 1 can be performed in m ways, job 2 can be performed in n ways. Then number of ways, I'm writing it again, number of ways of
performing either first or second job is m plus n ways. सो आप खुद देख सकते हो जिस क्वेश्चन में और की सेंस आती है उसमें हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन यूज करते हैं, राइट. इट्स नॉट एज सिंपल. कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उन क्वेश्चंस को करने के बाद आपको you would keep on increasing your knowledge. Why is the key, isn't it? Why is the key? So I hope आप ये दोनों फंडे एक बार लिख लीजिए. उसके बाद हम प्रोसीड करते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ, एंड हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस विदाउट यूजिंग बेसिक सिंपल परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस. मैं अभी पी नहीं यूज करूंगा, सी नहीं यूज करूंगा, डायरेक्टली क्वेश्चन करेंगे. इससे पहले अगर आपने नंबर सिस्टम की वीडियोस देखी हैं तो दे वुड बी रियली रियली हेल्पफुल. चलिए बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की. देखिए, आई सेड देयर आर 8 बॉयज एंड 5 गर्ल्स इन अ क्लास. फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज कर लीजिए. पॉसिबिलिटीज मत लिखिए. फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग. फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग अ बॉय एंड अ गर्ल, राइट. अ बॉय और अ गर्ल. आई डोंट नो व्हाई टुगेदर भी लिखने की जरूरत नहीं है, right. There are 8 boys, 5 girls in a class. Find total number of ways of selecting a boy and a girl, or selecting a boy or a girl, right. देखिए एंड की सेंस आ रही है. मोस्ट ऑफ यू वुड से सर ये तो बहुत इजी है. एंड है, आपने बोला था फर्स्ट जॉब 8 ways, सेकंड जॉब 5 ways. सर 40 ways of selecting a boy and a girl. 40 ways of selecting a boy and a girl. एंड जब और की बात आती है सर 8 + 5, सर 13 ways of selecting a boy और a girl. दोनों में अंतर क्या है? फर्स्ट केस में वी आर सिलेक्टिंग अ पेयर, अ बॉय एंड अ गर्ल, सो 2 people आर सिलेक्टेड. सेकेंड केस में ओनली 1 person is selected. either it has to be a boy or it has to be a girl. अगर इसको अपन डिकोड करते हैं, इफ आई डिकोड द फर्स्ट वन, a boy and a girl. So suppose I select one boy, right? I select one boy. So what would be pair, right? What would be the pair corresponding to it? One first boy and first girl, first boy and second girl, first boy and third girl, first boy and fourth girl, first boy and fifth girl. Similarly, second boy के लिए second boy first girl, second boy second girl, second boy third girl, second boy fourth and second boy fifth. थर्ड बॉय के लिए थर्ड बॉय फर्स्ट गर्ल, थर्ड बॉय सेकंड गर्ल, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ. सो यू अंडरस्टैंड दीज आर द पेयर्स दैट वी आर मेकिंग, है ना. ये पेयर्स आपके बनते जाएंगे. 8 बॉयज हैं, राइट. फर्स्ट बॉय एंड फर्स्ट गर्ल, फर्स्ट बॉय एंड सेकंड गर्ल, फर्स्ट बॉय एंड थर्ड, फर्स्ट बॉय एंड फोर्थ, फर्स्ट बॉय एंड फिफ्थ, सेकंड एंड फर्स्ट, सेकंड एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड फिफ्थ, थर्ड एंड 1, थर्ड एंड 2, थर्ड एंड 3, थर्ड एंड 4, थर्ड एंड 5. इस तरह से चलते जाएंगे. सो 8 बॉय की बात करें, 8 and 1, 8 and 2, 8 and 3, 8 and 4, 8 and 5. सो डेफिनेटली इन सबको अगर तुम ऐड करोगे, इट कम्स आउट टू बी 8 into 5, 40 ways. दैट इज द रीजन वी डिड मल्टीप्लीकेशन. एंड की सेंस है. और सेकंड तो बहुत ही इजी है, अ बॉय और अ गर्ल. इस केस में तो हम कोई स्ट्रेस नहीं लेंगे, कोई टेंशन नहीं लेंगे. इट्स ओनली वन सिलेक्शन, इधर अ बॉय और अ गर्ल. तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 8 + 5, 13. तो एक बार आप चेक कीजिए. आई होप दैट दिस गिव्स यू इमेंस क्लैरिटी कि हाँ सर अब समझ में आ गया है किस तरह से हमने एडिशन या मल्टीप्लिकेशन यूज करनी है. देखिए, there are 6 trains running between Indore and Bhopal. In how many ways a man can go from Indore to Bhopal and again and return by a different train? Return by a different train, है ना. सो अब सिंपल सी बात कीजिए. इंदौर से भोपाल, इंदौर से भोपाल जाया जा सकता है 6 ट्रेन के साथ. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, fifth and sixth, right? But if you have taken a train from Indore to Bhopal,
तो भोपाल से इंदौर वापस उस ट्रेन से नहीं आओगे तो वापस आया जा सकता है 1, 2, 3, 4 और 5 ऑप्शन से, isn't it? So I can say Indore to Bhopal 6 ways, Bhopal to Indore 5 ways, and की सेंस आ रही है and return 6 into 5 30 ways, isn't it? ये आपने ध्यान रखना है. And diagram is always helpful, diagram is always useful. So I do believe अगर आप क्वेश्चन को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर दो तो वो क्वेश्चन इजीली सॉल्वेबल हो सकता है. So I hope this concept is clear to you, right? So let me do some questions by myself also. कुछ क्वेश्चंस मैं खुद भी कराना चाहता हूँ guys, है ना. So अपन लोग यूज करते हैं इसको, बैकग्राउंड चेंज करते हैं, राइट? तो चलिए नेक्स्ट सी. अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि यू नो थ्री पीपल sorry 7 people are running a race. 7 people are running a race. 7 लोग एक रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. नंबर ऑफ ways first 3 positions can be taken. पहली 3 पोजीशन किस तरह ली जाएंगी. ना कई बार कई क्वेश्चंस में ना हमें डायरेक्टली नहीं पता चलता कि हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन यूज करना है, मल्टीप्लिकेशन यूज करना है. दैट इज द रीजन आई हैव रिटन दिस क्वेश्चन सेपरेटली. तो अभी चेक करते हैं, लेट्स सी, राइट. देखिए 3 प्लेसेस बना लीजिए, 1, 2, 3. Now first place can be taken by any 7 people. इन 7 में से कोई भी फर्स्ट पोजीशन पे आ सकता है. एंड सेकंड पोजीशन कैन बी टेकन बाय एनी 6. वाई 6 सर? जो फर्स्ट पोजीशन पे आ गया वो सेकंड पोजीशन पे नहीं आएगा. एंड थर्ड पोजीशन कैन बी टेकन बाय एनी 5 ऑफ देम. एंड देन देखिए इट इज हैपनिंग इन सक्सेशन, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड. Definitely we will apply multiplication. It is 42 into 5, which is 210 ways where 7 people are participating. First 3 positions can be taken. ये समझने की जरूरत है कि फर्स्ट प्लेस 7 है, सेकंड 6 है, थर्ड 5 है. सो एक एक प्लेस जब आप चेक करते हो तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कम होते जाएंगे. I hope this is clear to all of you. This is one question which is actually very, very useful. So let's see. Again, इधर देखिए. He says find total number of 3-digit numbers. Total 3-digit numbers कितने होंगे, right? तो कई बार तो लगता है कि सर इतना आसान क्वेश्चन, बट अगेन देखिए 3-digit नंबर 100, 101, 102, 103, 104 से लेके 998 एंड 999. ये हैं सारे 3-digit नंबर्स, है ना. सो कितने होंगे देखिए, व्हेन यू राइट नंबर्स दैट आर कॉन्जिक्यूटिव. कॉन्जिक्यूटिव का मतलब यू नो इन नंबर्स में 1 का डिफरेंस है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बोलते हैं, ठीक है. सब नंबर्स में 1 का डिफरेंस है. तो डायरेक्टली आप ये भी लिख सकते हो, सर सब्सट्रैक्शन ऑफ एक्सट्रीम्स 999 minus 100 plus 1. Sir, these are 900 numbers, right? So whenever you are given consecutive numbers, right? So number of numbers कितने होंगे? 1 extreme minus second extreme plus 1. एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए पहले, तब हम उसके बाद विल यूज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. आई सेड 31, 32, 33, 34 से लेके 100 तक कितने नंबर्स होंगे? हाउ मेनी नंबर्स हैव आई रिटन? सो इट वुड बी 100 minus 31 plus 1. We have written 70 numbers. So number of consecutive numbers का ये फंडा है. एक बार नोट कर लीजिए प्लीज.
क्लियर? देन अगर अपने को इसी क्वेश्चन को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से सॉल्व करना है, विच इज एक्चुअली रियली रियली इंपॉर्टेंट। देखो यार, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज करना बहुत ज़रूरी है, या यू नो वी हैव टू यूज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। हर नंबर जो है इज फाउंड बाय यूजिंग 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. Every number can be formed using these 10 numbers. Every number can be formed using these 10 numbers, right? So make a 3-digit number, 1 2 3. Now please places को fill करना है, ठीक है? So first place can be filled in 9 ways. Why 9? Because first place पे 0 नहीं आ सकता है, it would be a 2-digit number अगर first place पे 0 आ जाए। So 0 के अलावा बाकी सारी digits आ सकती हैं, तो 9 digits बचती हैं। So first place can be filled in 9 ways, and second can be filled in 10 ways because second place पे 0 आ सकता है। third can be filled in 10 ways क्योंकि 0 आ सकता है। 9 into 10 into 10, 900. So this is a way we have used fundamental principle of multiplication and got number of numbers as 900. तो सर वो पहले वाला ही आसान है? हाँ बिल्कुल आसान है, बट अगेन यू नो क्वेश्चंस कैन चेंज, एंड वंस अ क्वेश्चन चेंजेस फिर वो प्रॉब्लम आ जाता है। सो माय सजेशन टू यू इज कि इट हैज टू बी इन अकॉर्डेंस विद द क्वेश्चन। तो जिस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है उस हिसाब से अपन यूज करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से तुम्हें समझ में आएगा कि दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। आई होप दिस इज क्लियर। सो देखिए इसमें रिपीटेशन अलाउड थी, सो दैट इज द रीजन वी सेड 9 एक पे 10 and 10, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन में आई होप कि हमें पता चलेगा फाइंड टोटल नंबर ऑफ 3-digit डिस्टिंक्ट नंबर्स। देखिए व्हाट आर डिस्टिंक्ट नंबर्स, अगेन ये की वर्ड है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में बहुत यूज होता है। नो रिपीटेशन अलाउड, नो रिपीटेशन अलाउड। तो जब हम डिस्टिंक्ट की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि कोई भी रिपीटेशन अलाउड नहीं है। नाउ यू कैन नॉट सॉल्व इट डायरेक्टली, you would have to use fundamental principle of multiplication as a tool, करना ही पड़ेगा और कुछ नहीं हो सकता। so let's make again the numbers can be filled 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। इन नंबर से अपने को 3 डिजिट्स बनाने हैं। फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 वेज बिकॉज इधर 0 नहीं आ सकता है, 0 कैनॉट कम ओवर हियर। Second place can be filled in how many ways? Second place can be filled in 9 ways again. Now this is something to be understood. देखिए फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आ सकती, सेकंड पे 0 is allowed, बट जो फर्स्ट प्लेस पे अगर a आ गया है एनी डिजिट, तो सेकंड प्लेस पे a नहीं आ सकता। That is the reason we say 9 ways, right? And third place पे फर्स्ट और सेकंड प्लेसेस वाली डिजिट्स नहीं आ सकती हैं, विच मीन्स इट इज 8। सो डेफिनेटली हैपनिंग इन सक्सेशन 9 into 9 into 8, 648 numbers that are distinct, 648 numbers where there is no repetition of digits। चलेगा? एक बार नोट कर लो क्योंकि यही बच्चों को तकलीफ आती है। प्रॉब्लम यह है कि बुकलेट्स अगर आप पढ़ते हो तो बुकलेट्स में लिखा है तो होते हैं ये, बट प्रॉब्लम बुकलेट्स में ये है कि इस तरह की एक्सप्लेनेशन नहीं दी होती है ना। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एज अ कॉन्सेप्ट कि हाउ डू यू यूज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी स्टार्ट हुआ है राइट? सो लेट्स सी अगला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड टोटल नंबर ऑफ 3-digit numbers having at least 2 digits repeated। ऐसे 3 डिजिट नंबर बनाने हैं जिसमें कम से कम 2 डिजिट्स रिपीटेड। अब this is something you know we whenever we you know take class also we ask questions, तो डेफिनेटली केसेस बनेंगे। देखिए ऐसा हो सकता है सर these 2 digits are repeated, or sir these 2 digits are repeated, or sir these 2 digits are repeated, or sir
ऑल 3 डिजिट्स आर रिपीटेड बिकॉज एटलीस्ट यूज हुआ है. सो ये 4 केसेस बन जाएंगे. Probably you would also understand केस बनाना is not a very big logic. Why? अगर मैं यही क्वेश्चन चेंज कर दूँ, I say find total number of 4 digit numbers, find total number of 4 digits numbers having at least 2 digits repeated. 4 digit बनाने 1 2 3 4. So where is the repetition? At least 2 digits are repeated. कितना बना लोगे? Isn't it? So cases बनाना is sometimes not very sensible. खुद देख लो. These 2 digits are repeated, these 2 digits are repeated, these 2 digits are repeated. Then what about 3 repetitions? Oh my god, है ना? This keeps on going and going and going. कितने केस बना लो? सो जेन्युइनली एटलीस्ट वाला क्वेश्चन कभी भी करना है. सो ये प्रॉब्लम है, मैं केस से भी सॉल्व करके दिखाऊंगा. आई वुड लव टू डू इट विद केस ऑल्सो, बट विदाउट केस ऑल्सो. ध्यान से सुनिए, जब भी एटलीस्ट 2 डिजिट्स आर रिपीटेड की बात आ जाए, एटलीस्ट की बात आ जाए, सो ऑलवेज रिमेंबर टोटल 3 digit numbers. I'm writing it just for the sake of you understanding it. Total 3 digit numbers having at least 2 digits, having at least 2 digits repeated is actually equal to total 3 digit numbers minus distinct 3 digit numbers. टोटल में से, टोटल 3 डिजिट नंबर में से अगर आप डिस्टिंक्ट, जिसमें कोई रिपीटेशन है नहीं है, वो माइनस कर दोगे. इफ यू माइनस, देन obviously you would get those numbers where digits are repeated, isn't it? And total 3 digit numbers कितने थे? अभी अपन ने किया था, it is 900, right? And 3 digit numbers distinct कितने हैं? 648. So 900 minus 648, 252 such numbers where at least 2 digits are repeated. पहला तो ये फंडा है, दो आई वांट टू काउंट आल्सो, बिकॉज ऑब्वियसली इन योर माइंड इट वुड बी गोइंग सर काउंटिंग से सिखाओ, तो मैं काउंटिंग से भी सिखाएगा, राइट? इधर देखिए, दिस कैन बी फिल्ड इन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. दीज आर द डिजिट्स, इजंट इट? अब अगर ये दोनों डिजिट्स की बात करें, दीज टू आर रिपीटेटिव, दिस कैन बी फिल्ड इन 9 ways. So we don't bother about it क्योंकि whatsoever number comes here would come here, isn't it? तो ये तो one way ही हो गया, and this can again be filled in 9 ways. So 81. Similarly इधर भी देखो 9 ways. So ये same number repeat हो गया और ये 9 रह जाएगा. Again 81. Similarly देखिए, this is 9 ways, this is 9, this is 1, 9 into 9 into 1 is 81. So or total 3 digit numbers where all the digits are repetitive would be 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999, which is equal to 9. So 252 इस तरह भी आएगा. But why to do this when this is good, है ना? When this is good चलेगा. So देखिए, एटलीस्ट वाला क्वेश्चन 90% टाइम्स टोटल माइनस डिस्टिंक्ट होता है. ये अगर आप लिख लेते हैं, इवन वीडियो स्टॉप करके आप लिख लीजिएगा जो मैंने लिखवाया था. सो आज के बाद एटलीस्ट वाला क्वेश्चन अगर आ जाता है नंबर ऑफ नंबर्स पे, इट इज टोटल माइनस डिस्टिंक्ट. प्लीज इसको नोट कर लीजिए, दिस इज रियली रियली यूजफुल. चलेगा? जैसे वही वाली बात हो रही थी, मैं सेड फाइंड टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स हैविंग एटलीस्ट 2 डिजिट्स रिपीटेड. So total number of 4 digit numbers कितने होंगे बच्चों? 1 2 3 4, right? 9, this is 10, this is 10, and this is 10 ways, right? And इसमें distinct कितने हो जाएंगे? This is filled in 9 ways, this is again in 9, this is in 8, and this is with 7. So ये आपका 4 digit वाले का आंसर हो जाएगा. So rather than making cases, this is a brilliant way of solving the question. stress कम रहेगा, है ना?
ऑलराइट, चलिए आगे देखते हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा तो स्ट्रेस कम हो रहा होगा। राइट, 2 क्लास लगे, ओनली 2 क्लास, राइट। कुछ नहीं है, घबराओ मत, चिंता मत करो, राइट। एक चीज याद रखना, there is nothing that cannot be managed. I tell a lot of students, those who are from arts background, maybe bio background, non-mathematical backgrounds, देखो यार सिंपल सी बात है, एप्टीट्यूड इज नो डेफिनेशन, यू नो, यू कैन नॉट डिफाइन इट बाय सेइंग ये वाला क्वेश्चन डालो, ये वाला क्वेश्चन मत डालो। आने दो, सब कुछ करके जाएंगे, राइट, और सारे पेपर को अच्छे से करके आएंगे। डोंट डू पिक एंड चूज इन सीसैट। whenever and you know whenever every year students would do pick and choose, they at the end they would ask sir कौन सा करें कौन सा नहीं करें। it has never worked. we cannot predict कि वो पेपर में क्या देगा, है ना। अभी अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, देखिए फाइंड टोटल 3 digit numbers having exactly one of the digits as 7। एग्जैक्टली वन ऑफ द डिजिट 7 है और टोटल पूछ रहा है, तो टोटल में रिपीटेशन अलाउड होती है। नाउ यू आर स्मार्ट, अब मैं साफ बोल रहा हूँ टोटल में, इफ ही सेज टोटल, डिस्टिंक्ट नहीं बोल रहा, टोटल बोल रहा है, रिपीटेशन इज अलाउड। हमारे पास है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सो पहला एग्जैक्टली वन डिजिट है 7, अगर मैं 7 इधर फिक्स कर दूं तो 7 इज गॉन, isn't it? Because exactly one of the digits is 7, so this can be filled in one way, remaining this and this can be filled in 9 and 9 ways because repetition is allowed, so 81 ways, isn't it? अब दूसरी बात करें, अगर हम लोग 7 इधर फिक्स कर दें, so this is filled in one way, right? Now this place is filled in 8 ways, ये जरूरी था बिकॉज नाउ 100 प्लेस में ना 0 आ सकता है ना 7 आ सकता है। इफ यू मेक 0 ओवर हियर, यार ये 2 डिजिट नंबर बन जाएगा, ठीक है। एंड थर्ड प्लेस पे 0 आ सकता है बट 7 नहीं आ सकता है, 9 वेज, सो दिस इज 72, राइट। एंड थर्ड केस फिर से देखते हैं, थर्ड केस अगेन, इफ वी हैव 7 ओवर हियर as a number, so this can be filled in one way, this is 8 ways because यहाँ 0 नहीं आ सकता, 7 नहीं आ सकता, and this is 9 ways, comes out to be 72 again, right? So 81 plus 72 plus 72 comes out to be 225 ways, 225 such numbers having exactly one of the digits as 7। देखो चेक करो, समझना जरूरी है। आई डोंट वांट टू मूव फास्ट, आई जस्ट वांट दैट एवरीवन शुड अंडरस्टैंड कि ये बहुत इजी है, ये इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल आप लोगों ने इसको बना दिया है ना। चलिए बात करते हैं सर एक और क्वेश्चन। नाउ सी, आई थिंक कीप ऑन सॉल्विंग। देखिए यार सीसैट के लिए मैं आज भी सबको एक ही चीज बोलता हूँ, रोज क्वेश्चन सॉल्व करो, इसके नोट्स मत बनाओ, बहुत बड़ी गलती, राइट। नोट्स आपको, आई एम गोइंग टू गिव यू प्रॉपर नोट्स, प्रॉपर स्ट्रक्चर व्हेन आई एम गोइंग टू स्टार्ट द कोर्स। उससे पहले प्लीज डोंट गो berserk about just making notes and not doing anything. The half the battle would be won if you practice the questions every day. Problem, UPSC एस्पिरेंट अपने आप को ऐसा कुछ समझने लग जाता है कि नोट्स बनाएंगे बाद में पढ़ेंगे, सीसैट के लिए नहीं करना है, समझा। अब बात करते हैं, लेट्स सी क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, आपके सामने है क्वेश्चन, फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट 3 डिजिट नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली वन ऑफ द डिजिट्स एज 7। तो सेम क्वेश्चन है बट अब क्या है, मैंने डिस्टिंक्ट बोल दिया है। डिस्टिंक्ट मींस रिपीटेशन नॉट अलाउड, राइट। अगेन फिर से 0 1 2 3 4 5 6 7 रहने देते हैं, चलो 7 लिख लेते हैं, 8 एंड 9, राइट। इनसे फिलिंग करना है 1 2 3, इस डिजिट को 7 लिख लीजिए, फिल्ड इन वन वे। सेकेंड प्लेस वुड बी 9 वेज, वाई, बिकॉज दिस वोंट हैव 7, तो बाकी सारे नंबर्स आ सकते हैं, इजंट इट। एंड थर्ड इज 8 वेज, बिकॉज ना तो यहाँ 7 आ सकता है, जो नंबर यहाँ आकर हो गया वो नंबर भी इधर आकर नहीं हो सकता है। 72 सच नंबर्स, क्लियर, 72 सच नंबर्स। फिर देखते हैं दूसरा, 1
2, 3. So this place is 7. So this is filled in one way, and this place would be filled in 8 ways. Why 8, sir? Sir, इधर 0 भी नहीं आ सकता है, इधर 7 भी नहीं आ सकता है. Agreed? And the third place would again be 8. Sir, why 8? Because 7 cannot come over here, and any digit, dot को digit मान लो, so dot would also not come. It is 64. Clear? And then third, sir, 1, 2, 3, 7 fixed here. So this is one way, and this is 8 ways. Why? 0 cannot come over here, 7 cannot come over here, and this is 8 again, right? Comes out to be 64. So 72 plus 64 plus 64 comes out to be 200 such numbers. So there are 200 such numbers where exactly one of the digits is 7 and remaining other digits are distinct, है ना? तो ये ध्यान रखना है. तो देखिए टोटल कितने थे? If I go back, find total number of 3-digit numbers having exactly one of the digits as 7 were 225. They were 225. And distinct 3-digit numbers having one of the digits as 7 कितने हैं? वो हैं 200. वो हैं 200. दोनों को माइनस किया 25. ठीक है. सो वो 25 कौन से नंबर होंगे? एग्जैक्टली वन ऑफ द डिजिट्स एज 7 एंड रिमेनिंग 2 डिजिट्स रिपीटेटिव. सोच के देखो प्लीज. रिमेनिंग 2 डिजिट्स रिपीटेटिव. चलेगा? राइट. सो आशा करता हूं कि अब थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि यस सर, अब कुछ बन रहा है, अब अपन कर सकते हैं. फ्रैंकली यही क्वेश्चंस पेपर में भी पूछे गए हैं. मैं आपको सत्य बोल रहा हूँ, इट्स नॉट अ लाई. आप प्लीज पेपर का एनालिसिस कीजिए. यू वुड रियलाइज कि क्वेश्चंस टफ नहीं आते हैं, क्वेश्चंस इसी तरह के आते हैं. प्रॉब्लम क्या है? आप लोग मतलब ऑल ऑफ यू आर लुकिंग फॉर ट्रिक्स. देखो यार, ट्रिक्स इज रियली एप्लीकेबल व्हेन यू हैव सॉलिड बेसिक्स. देखो व्हाई वुड somebody ask you questions on tricks only? मुझे मतलब frankly, if you are a serious aspirant, you should understand यार, ट्रिक व्रिक से कुछ नहीं होने वाला है. ट्रिक मैथ्स थोड़े ना, ठीक है ना. दे डोंट वांट ट्रिकस्टर्स. सिंपल सा फंडा यार. चलो नेक्स्ट देखते हैं. Now this is beautiful. 4-digit number are formed using the digits 0, 1, 2, 3, 4 and 5. Right? He says find total number of 4-digit numbers that are exactly divisible by 4. CSET में आया हुआ है. Right? Exactly divisible by 4. So what is divisibility rule of 4? Please, एक वीडियो मैंने अपलोड की है divisibility rule. उसमें मैंने divisibility of 4 पे बात की हुई है. The number is exactly divisible by 4 if last two digit of the number are exactly divisible by 4 or number ends with 2 zeros, right? And that is the reason this is a good question. So हम लोग last 2 digits की ही बात करते हैं. Number ending with 0 0, isn't it? Or number ending with 0 4, or number ending with 1 2, or the number ending with 2 0 2 4, or number ending with 3 2, or the number ending with 4 0 4 4, or the number ending with 5 2. So कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So this I think early CSAT में ये क्वेश्चन आया हुआ है. And yes guys, I must tell you, जब CSAT नहीं भी होता था तो GS पेपर 1 में एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते थे और वो बहुत हाई लेवल क्वेश्चंस होते थे. 2008 का पेपर देखिएगा ना. दिस इज द इंफॉर्मेशन आई एम डिलीवरिंग यू. 2008 के क्वेश्चन पेपर के 3 क्वेश्चंस 2023 के पेपर में आए हुए हैं. राइट? तो आपको ये जान के ना बड़ी हैरानी होगी कि सर ऐसा भी था. यस, ऐसा था. राइट? अब बात करते हैं रिमेनिंग 2 डिजिट्स की. गाइस, रिमेनिंग 2 डिजिट्स में दिस प्लेस कैन बी टेकन बाय एनी 5. 1 2 3 4 5, नॉट 6 बिकॉज पहली प्लेस पे 0 नहीं आ सकता. एंड दिस can be taken by any 6. So 5 into 6 is 30, right? So there are 30 numbers ending with 2 zeros, and similarly there would be 30 numbers ending with 0 4, 30 with 1 2, 30 with 2 0, 30 with 2 4, 30 with 2. सब 30 30 होगा.
So total 9 into 30 comes out to be 270. 270. So there are 270 such numbers that can be formed using 0, 1, 2, 3, 4, 5, which are exactly divisible by 4. Right? But दूसरा क्वेश्चन देखिए, find distinct 4-digit numbers that are exactly divisible by 4. अब वो distinct आ गया, and distinct case is actually important क्योंकि you know now they are actually experimenting with such questions. अब कुछ क्वेश्चंस उन्होंने टफ कर दिए हैं, so distinct वाला क्वेश्चन जो है obviously टफ रहेगा, ठीक है. So distinct केस में मैं आपको इनवाइट करता हूँ, if you can answer this question. पहले तो केसेस कम हो जाएंगे. यू वुड इग्नोर केसेस 0, 0 एंड 4, 4. तो बचेगा क्या? नंबर एंडिंग विद 0, 4, नंबर एंडिंग विद 1, 2, नंबर एंडिंग विद 2, 0, नंबर एंडिंग विद 2, 4, नंबर एंडिंग विद 3, 2, नंबर एंडिंग विद 4, 0 एंड नंबर एंडिंग विद 5, 2. राइट, रिमेनिंग 2 प्लेसेस आप बना लीजिए. ऑलराइट, सो सर बाकी तो सब सेम है. नो, सेम नहीं है. दिस इज वेयर द गेम चेंजेस. आप खुद देखिए, वी हैव टू फिल अप. तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ. वी हैव टू फिल अप यूजिंग 0, 1, 2, 3, 4, 5. सो पहले केस में, नाउ सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्टिंक्ट, सो 0 कैनॉट बी यूज्ड, 4 कैनॉट बी यूज्ड, isn't it? This place can be filled in how many ways? 4 ways. And this place can be filled in how many ways? 3 ways, isn't it? 4 बचे, 1, 2, 3, 5. So any 4 can come, or either 3 can come. So 4 into 3, this is 12. So number ending with 0, 4 would be 12, isn't it? Then number ending with 1 and 2. So मैं दोबारा बना रहा हूँ. देखिए 0, 1, 2, 3, 4 and 5. 1 and 2 have been used, so 1 and 2 को cancel कर दीजिए. So now we are left with 0, 3, 4 and 5. So 0 तो इधर वैसे भी नहीं आ सकता है. 0 cannot come. This can be filled in 3 ways, and again this can be filled in 3 ways. 3, 3 means 9. So देखिए, any number which has a 0 would have 12. Any number which does not have a 0 would have 9. So your answer comes out to be 72 such numbers. 72 such numbers. So total कितने cases थे वहाँ पे? 270. Total 4-digit numbers that can be formed using 0, 1, 2, 3, 4, 5, right? Which are exactly divisible by 4, but distinct 4-digit numbers that can be formed using 0, 1, 2, 3, 4, 5, which are exactly divisible are 72. So फिर से मैं लिख रहा हूँ 270 total minus 72 करेंगे 198 ऐसे numbers हैं that can be formed using 0, 1, 2, 3, 4, 5 which are exactly divisible by 4 and at least 2 digits are repeated. Total minus distinct. Okay, I hope this is good, guys. This gives you some knowledge. And the last one, again, divisibility rule of 3 is something they are actually now asking a lot of questions. And you know that past few years they've been asking a lot of questions on divisibility. So अब क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि इन्हीं numbers में अगर आप फिर से ये question देखें, he says find distinct 4-digit numbers that are exactly divisible. Distinct 4-digit numbers that are exactly divisible by 3. So what is divisibility rule of 3? Sum of the digits is a multiple of 3, है ना? So अब हमारे पास digits कौन सी हैं? 0, 1, 2, 3, 4 and 5. And is asking distinct. Repetition not allowed. Total नहीं पूछ रहा है. So obviously in this case, rather than getting stuck up, आप 4 ऐसे नंबर उठाओगे जिनका सम, ध्यान से सुनिए, जिनका सम 3 का मल्टीपल हो, राइट? सो पहले 4 उठाने हैं तो एक को 0 मान लीजिए. सो 0, 1 and 2, isn't it? 0, 1, 2, 3. इनसे जो भी नंबर बनेंगे 0, 1 and 1, 2, 3 से,
कोई भी नंबर बनता है 4 डिजिट वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 होगा, राइट। सो फर्स्ट केस फिर से देखिए 0 1 2, इजंट इट? 0 1 0 के साथ एक केस तो आपका बन गया 0 1 2, राइट। ये 3 का मल्टीपल बन गया, उसके बाद 3 का मल्टीपल एक 3 ही है, सो 0 1 2 से और कोई नहीं बनेगा। तो अपन अभी चेक करेंगे 0 2 से कुछ बनता है, 0 and 2 comes out to be sum is 2, 0 2 3 4। अब ये चूज एंड पिक करना ही पड़ेगा आपको, 0 2 3 4, isn't it? फिर 0 2 के साथ और कोई आप देख सकते हैं, 0 2 3 and 4 तो आपका बन गया, राइट। कोई और 0 2 के साथ और कोई बन रहा है? आई डोंट थिंक सो। फिर बन रहा है आपका 0 3 4 and 5, देखिए 0 3 4 5, isn't it? चेक कीजिए, यस सर, वी आर एबल टू मेक इट नाउ, isn't it? ये तो सही में बन रहे हैं, क्लियर। फिर 0 के साथ और कोई कॉम्बिनेशन आप चेक कीजिए, विच मीन 0 तो आपने देख ही लिया, 3 नंबर के और कोई कॉम्बिनेशन अगर आप चेक करेंगे तो कोई ऐसा और है जो बन सकता है, 0 1 2 3, राइट, एग्रीड। 0 1 के साथ और कोई बनेगा, आप ये चेक कर लीजिए बस। 0 1 के साथ अगर आप चेक करते हैं 0 1 सम आ गया 1, रिमेनिंग 2 का सम जो है वो आपका आना चाहिए 8, सो वो 8 नहीं आ रहा है। 0 2 तो रिमेनिंग 2 का सम 7 आना चाहिए, सो 3 और 4 का सम 7 है और किसी का नहीं आ रहा है। 0 3, सो 0 3 के साथ रिमेनिंग का सम आपका 0 3 के साथ रिमेनिंग का सम आपका 6 भी आ सकता है। तो अगर आप चेक करेंगे 0 3, सो 2 and 4 आ चुका है। 0 के साथ और कोई कॉम्बिनेशन मेरा तो नहीं बन रहा है, सो चेक कीजिए बाकी और कोई कॉम्बिनेशन, तो 1 2 3 1 2 4 and 5, 1 plus 2 plus 4 plus 5 is also giving you the same kind of thing, isn't it? 1 plus 2 plus 4 plus 5 coming out to be a multiple of 3। so अब देखिए, ध्यान से देखिए, इससे कितने नंबर्स बनेंगे, 1 2 3 4। फर्स्ट प्लेस कैन बी टेकन इन 3 वेज, वाई 0 नहीं आ सकता। सेकेंड 3 वेज अगेन, बिकॉज यहाँ पे 0 आ सकता है, ये वाला नंबर नहीं आ सकता। थर्ड 2 and 1, राइट, 3 3 2 1, दिस इज 18, राइट। सो 0 से जो भी शुरू होगा वो 18 18 18 ही होगा, सो 18 plus 18 plus 18 आपका बन जाएगा, विच एक्चुअली कम्स आउट टू बी 54, isn't it? और 1 2 3 4 से कितना बनेगा, 1 2 4 5 से 4 3 2 1। फर्स्ट प्लेस कैन बी टेकन इन 4 ways, second in 3, third in 2 and 1, which is 24। so 78 such numbers are there। एक बार फिर से चेक कर लेना, मेरे हिसाब से 0 के साथ और कोई कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, आप चेक कीजिए, मेरे हिसाब से कोई ना कोई और बन सकता है, हाँ, डू यू थिंक सो? 2 3 4 5 तो नहीं बन रहा, नहीं बन रहा। 1, I think we have taken everything into consideration, 0 1 2 3, right, and 8 कोई multiple guys, 0 1 3 5, 0 1 3 5, ये चेक कीजिए, 0 1 3 5, 0 plus 1 plus 3 plus 5, 18 more guys, 96 such numbers। This is what they have been giving you now। अब पेपर में ये आता है, इसीलिए पेपर को टफ माना जाता है, क्लियर है? सो मुझे लगता है, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ सकते हैं। देखिए, मतलब दे आर गोइंग टू टेस्ट यू ना, कि सिंपल सीधा साधारण क्वेश्चन दे देगा तो एवरीवन इज गोइंग टू सॉल्व इट। पॉइंट क्या है, अगर आपने क्वेश्चन करना है तो फिर वो आपको अच्छा ही क्वेश्चन करना पड़ेगा। देखिए, मैंने भी बहुत कोशिश के बाद, राइट, 5 केसेस बना दिए हैं, देन यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। और आजकल पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, राइट, होते हुए भी नहीं होते हैं। लास्ट ईयर 2024 में मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, बहुत सारे बच्चों ने अपनी स्ट्रैटेजी ये बनाई थी कि क्वांट और डीआई तो बहुत मुश्किल आता है, रीजनिंग बहुत मुश्किल आ रही है, इंग्लिश करेंगे।
और क्वांट DI रीजनिंग 2024 में सब्सिक्वेंटली थोड़ी इजी थी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये क्वेश्चन इतनी बार आपके पेपर में आ चुका है, नॉट द सेम क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन सेम नहीं है, क्वेश्चन सेम नहीं भी आता है, बट इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। फाइंड सम ऑफ all 4 digit distinct numbers that can be formed using the digits 1 2 3 4 1 2 3 और 4 को यूज करके जितने भी 4 डिजिट नंबर्स बनते हैं उनको सम कीजिए। सर व्हाई शुड वी डू इट, राइट? सर इज देयर ए ट्रिक टू इट? अब प्रॉब्लम ये है कि तुम लोग बहुत सारी यूट्यूब वीडियो देखते हो और यूट्यूब वीडियो देख के वो हर चीज़ की ट्रिक बना देता है, आप हर चीज़ की ट्रिक लिख देते हो। बट उन्होंने क्वेश्चन जो दिया था, मैंने नंबर सिस्टम क्लास 1 में ये सॉल्व किया था क्वेश्चन, आप चेक कीजिएगा यूट्यूब पे ही पड़ी हुई है। तो वो था एनी मल्टीपल्स ऑफ नॉन जीरो मल्टीपल्स ऑफ 3 को ऐड किया जाए, देन यू नो दे हैड गिवन ऑप्शंस, इज इट अ मल्टीपल ऑफ 74, इज इट अ मल्टीपल ऑफ 37। सो दे आर नॉट गिविंग यू डायरेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है ना? तो प्लीज ट्रिक्स काम भी नहीं आएंगी क्योंकि तुम्हें लगेगा कि यार ये तो क्वेश्चन किया हुआ भी नहीं हुआ है। तो आई वुड मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर एग्जैक्टली आस्किंग, कि पूछ क्या रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं, और फिर देन वी वुड डू समथिंग जिसको आप लोग शॉर्टकट बोलते हो, बट वो इजीली आप भी कर सकते हो। सो फाइंड सम ऑफ ऑल 4 डिजिट डिस्टिंक्ट नंबर्स। तो पहली चीज तो यार डिस्टिंक्ट नंबर्स अगर आप लिखोगे 1 से शुरू होने वाले, चेक कीजिए 1 से शुरू होने वाले 1 2 3 4 1 2 4 3 1 3 4 2 1 3 2 4 1 4 2 3 1 4 3 2, 1 से शुरू होने वाले, राइट? सर सारे लिखोगे? मैं लिखूंगा सारे पर मैं ऐड नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस यू दैट। कुछ सेंसिबल निकालेंगे। 2 से शुरू होने वाले 2 1 4 3 2 1 3 4 2 3 1 4 2 3 4 1 2 4 1 3 2 4 3 1, राइट? 3 से शुरू होने वाले 3 1 4 2 3 1 2 4 3 2 4 1 3 2 1 4 3 4 1 2 3 4 2 1। सो अब तुम्हें भी समझ में आ रहा होगा, 3 को फिक्स किया, 1 को लिखा, बाकी को रोटेट कर दिया, राइट? और 4 से शुरू होने वाले तो फिक्स कर दो, लो 4 3 2 1 4 3 1 2, रोटेशन कर दिए 4 1 3 2 4 1 2 3, राइट? 4 2 1 3 एंड 4 2 3 1। सो मैंने किसी हिसाब से भी सेटअप करके सारे के सारे 24 के 24 लिख दिए हैं। मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी 24 लिखने की, पर लिखने से फ़ायदा हो रहा है। आप खुद देखिए, प्लीज़ पे अटेंशन, इफ़ यू रियलाइज इट। देखो जस्ट चेक इट, ये पहला अगर इसको ऐड करना है अपने को, हम सारा ऐड क्यों करेंगे? देखना, हाउ मेनी फोर्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6। How many fours are there? 6 fours are there, sir, right? I say how many threes are there? 1 2 3 4 5 6, isn't it? How many twos are there? How many twos are there? 1 2 3 4 5 6, and how many ones are there? अब तुम्हें पता है, right? How many ones are there? So 1 2 3 4 5 6. So every digit is coming 6 times. In one of the lines, या इधर भी देख लो, 1 6 times, 2 6 times, 3 6 times, 4 6 times. In every line, vertical line, every digit is occurring 6 times. So can I say 1 occurs 6 times, 2 occurs 6 times, 3 occurs 6 times, 4 occurs 6 times? तो ऐसा लिख सकते हैं, this would be the sum of the unit place, है ना? So unit place का sum, इसका sum क्या होगा? 1 6 times, 2 6 times, 3 6 times, 4 6 times, isn't it? Which comes out to be 10 into 6, which is equal to 60. And if unit place is 60, तो सारी places 60 होंगी ना? So नीचे से sum करना शुरू करोगे, देखिए इस पूरी line का sum है 60, 6 कैरी, तो इसका भी पूरा 60 था। सो 60 प्लस 6 is 66, 6 कैरी 66,
6 carry 66. So your sum is 66660, है ना? So अगर आपको यूनिट प्लेस का सम पता है तो 10th का भी सम सेम है, 100th का भी सेम है एंड 1000 प्लेस का भी सेम है. सो दिस इज इट. सो पहला फंडा ये है. दूसरा, अगर आप शॉर्टकट सीख करते हो तो देखो यार, बहुत इजी सी बात है. सारे डिजिट्स जो आपको दिए हैं उनका सम लिख दीजिए. 1 + 2 + 3 + 4. दीज आर 4 डिजिट्स इनटू 4 - 1 का फैक्टोरियल. जितने भी डिजिट्स दिए हैं, 4 नंबर दिए हैं, 4 - 1 का फैक्टोरियल which is 3 factorial, which is again same, 6 बार आ रहा है, राइट. इनटू जितने भी आपको नंबर्स दिए उतनी बार 1 1 1 1 लिख लीजिए. दिस 1 corresponds to sum at unit place, this 1 corresponds to sum at 10th place and so on. तो आप चेक करके देखिए. 1 1 1 1 into 10 into 6, 1 1 1 1 into 60 comes out to be 6666. अब ये आप शॉर्टकट भी बता सकते हो कि सर दिस इज अ वंडरफुल शॉर्टकट, पीपल आर वेरी हैप्पी. बट रीजन तो पता चल गया ना, राइट? अब कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, एटलीस्ट यू वुड नॉट बज अवे, यू वुड नॉट से कि सर नहीं मुझे तो आता नहीं, तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन. तो कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है. सो ये चीज आप ध्यान रखिएगा. सो आई एम राइटिंग द फॉर्मूला अगेन. प्लीज सम ऑल द डिजिट्स टाइम्स जितना डिजिट है -1 फैक्टोरियल टाइम्स जितना डिजिट है उतनी बार 1 1 1 1. सो इट इज 10 into 6 into 1 1 1 1 which is 66660. दिस इज योर आंसर. ठीक है, तो अब शॉर्टकट पता चल गया. सिमिलरली आपके पेपर में बोला था नॉन जीरो सिंगल डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 3. ये 2022 में आया था पेपर में, राइट. सो नॉन जीरो सिंगल डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 3 से जितने भी नंबर्स बनते हैं. सो नॉन जीरो मल्टीपल्स ऑफ 3 थे 369 सिंगल डिजिट. इनसे ही डिफाइंड, इनसे जितने भी डिस्टिंक्ट नंबर्स बनते हैं उनके सम को s बोला था. सो व्हाट वुड बी s? इट वुड बी 3 + 6 + 9 टाइम्स 3 - 1 फैक्टोरियल टाइम्स 1 1 1. ठीक है, टाइम्स 1 1 1, right, which comes out to be 18 into 2 into 1 1 1, which is 9 into 2 into 2 into 1 1 1 is they love 1 1 1 3 into 37. So options में दिया था option number 1. Then this was defined. S is a multiple of 74. 37 into 2 is 74. Yes. Then second option दिया था S is a multiple of 27. 9 into 3 27. Yes. दोनों ऑप्शंस राइट थी. सो दे आर गिविंग सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस, बार बार देते हैं. 3 बार तो मैं इस क्वेश्चन को देख चुका हूं. आई हैव सीन इट 3 times. ठीक है, डिफरेंट वेज एंड देयर लव फॉर 111 इज रियली ऑसम. ठीक है, सो आई होप नाउ यू आर सॉर्टेड, यू आर हैप्पी. इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल तुम लोग मानते हो. डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बाद में करेंगे. एक क्वेश्चन मैं करना चाहता हूँ. ऐसे दिस इज वन क्वेश्चन मैंने स्टेट एग्जाम में देखा था एंड इट इज अ गुड क्वेश्चन. ही सेज फाइंड ऑल डिस्टिंक्ट find number of distinct numbers that can be formed using the digits 0 1 2 3 and 4. कितने डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं जो कि फॉर्म हो सकते हैं यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 0 1 2 3 4. बच्चे बहुत कंफ्यूज हो गए कि सर इसने नंबर ऑफ डिजिट्स तो बोले ही नहीं. इज इट अ 3 digit नंबर, इज इट अ 4 digit नंबर? एंड यस, दिस इज अ केस ऑफ कंफ्यूजन. आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट. तो फिर कैसे करना है बताओ, पेपर में आया हुआ है. कैसे करेंगे? सो देखिए, आप
सिंपली सिर्फ डिजिट्स लिखते हैं पहले। सिंस ही सेज डिस्टिंक्ट, सो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, यू कैन फॉर्म अ 5 डिजिट नंबर, isn't it? उससे ज्यादा तो फॉर्म ही नहीं हो सकता। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 ways। व्हाई? फर्स्ट प्लेस पे 0 सकती है, दिस कैन बी फिल्ड इन 4 अगेन, यस सर, दिस इन 3, दिस इन 2 एंड दिस इन 1, हैपनिंग इन सक्सेशन। डेफिनेटली 96 5 डिजिट नंबर्स होंगे। बट व्हाई ओनली 5 डिजिट नंबर्स? अगर आप 4 डिजिट की बात करेंगे, 4 डिजिट नंबर्स कितने होंगे? So 1, 2, 3, 4, again this is 4 ways। Why? Because पहली पे 0 नहीं आ सकता, this is again 4। Why? Because दूसरी पे 0 आ सकता है, right? And third is 3 and then 2, again 4 into 4 into 3 into 2 is 96 again, right? 3 digit numbers की बात करें, 3 digit numbers, so total 3 digit numbers, distinct numbers would be 4 into 4 into 3, which is 48। and 2 digit numbers की बात करें, 2 digit numbers कितने होंगे? Sir, this can be filled in 4 ways, this in 4 ways, 16 numbers होंगे। and 1 digit number कितना होगा? तो बहुत सारे बच्चे लिख देते हैं 1 digit number होंगे सर 4, 1 2 3 4। क्यों भाई? 0 is also a number, isn't it? 0 1 2 3 4, right? So ये होंगे 5। So your answer would actually be 96 plus 96 plus 48, isn't it? Plus 16 plus 5, isn't it? तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा? 6 जमा 6 12 जमा 12 जमा 8 20, 20 जमा 11 31 3, isn't it? और ये बन गया 9 जमा 9 18, 18 जमा 4 22 23, 261। एंड ऑप्शन नंबर 1 वाज 260 बिकॉज दे वांटेड कि तुम 0 को कंसिडर ही मत करो, 0 इज अ इम्पॉर्टेंट नंबर। तो ये ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन स्टेट एग्जाम्स में भी आते हैं। एंड आई मस्ट से देखो यार, स्टेट एग्जाम्स वुड ऑलवेज फॉलो द पैटर्न दैट इज सेट बाय यूपीएससी। पेपर टफ होगा एंड प्लीज यूपीएससी सीसेट को अब इनिशिएट हुए लिटरली 13-14 साल हो चुके हैं, तो कम ऑन, they have to improve because everyone has to improve यार। remember, same applies to you, improve every day, practice every day। एक और क्लास में करेंगे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन क्या है और उनके बीच का डिफरेंस क्या है। अब सीसेट से डरना नहीं है, सीसेट ढंग से करना है। आई होप दिस क्लास इज गुड। आई एम वेटिंग फॉर द कमेंट्स कि आपको ये कक्षा कैसी लगी। थैंक यू सो मच, दोबारा मिलते हैं। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।